Hello, students. How are you all? I hope you all are doing really well. So, this is the part 5 of chapter number 1. It is practice of balancing chemical equations. I know balancing cannot be understood like this, so I have made a live video for you. Please go through this video completely and practice more balancing of chemical equations at home. I hope this will going to benefit you. Okay, so let's proceed. Now, if you remember, in my previous video in which I taught how to balance a chemical equation, I told you that first you need to find out that element which has maximum number of, more number of atoms. Okay, now here you can see that hydrogen has more atoms. Here on the left hand side there are 2 atoms, and on the right hand side 1 plus 2 is equals to 3 atoms. Okay, and rest of the elements have only one atom. So we will begin balancing with hydrogen. Now here on the left hand side there are 2 atoms of hydrogen, and on the right hand side there are 3 atoms of hydrogen. So what we need to do, we need to add 1 here. Is that clear? So how we'll going to add? You know hydrogen is written here. So obviously we will going to add number here. Okay, but whenever we balance we always start with 2. इज दैट क्लियर? हम जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो हमेशा 2 लिखते हैं यहाँ पर, कभी भी 1 नहीं लिखते हैं. कोई नंबर यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 ही है ऑब्वियसली. ठीक है, तो हम हमेशा यहाँ पे क्या लिखते हैं 2. अब ये जो 2 है ये दिस सिम्बोलाइजेस दैट देर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. और ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है. इज दैट क्लियर? ओके, अब कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को? हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है, अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये और ये नंबर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है. इज दैट क्लियर? नाउ हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? 2 इंटू 2 4. लेफ्ट हैंड साइड में अब कितने हो गए? 4. लेट अस कम टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में अभी कितने हैं? 3, यानी कि यहाँ पर एक कम हो गया. अगर हम यहाँ पर 2 ऐड करते हैं तो यानी कि 2 2 सा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऐड करने से क्या मतलब है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो गए? NaOH. तो ये जो 2 है वो Na के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है. अंडरस्टूड? दैट मीन्स अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 2. और यहाँ पे कितने थे? 2. इसका मतलब अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के? 4 एटम्स हो गए. इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. अब आते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट पर, सोडियम पर आते हैं. तो सोडियम पर जब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 एटम ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट, एंड ऑन द राइट हैंड साइड you can see that there are 2 atoms of sodium. So what we will going to do? We will going to write 2 here. अब यहाँ पर क्या हो गया? 2 atoms of sodium, 2 atoms of sodium, यानी कि sodium is balanced now. Let us come to oxygen. Oxygen यहाँ पर on the right hand side, this 2 is for oxygen also. So oxygen is 2. और यहाँ राइट हैंड साइड में दिस 2 इज़ फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो. यहाँ पर भी क्या कितने नंबर है? 2 है. दैट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. लेट अस चेक अगेन. 2 सोडियम, 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2 2 सा 4 हाइड्रोजन, 2 plus 2 4 hydrogen, oxygen 2, oxygen 2. That means this is the balanced equation. Let us write it clearly. 2 Na plus 2 H2O gives 2 NaOH plus H2. So this is the balanced equation required. Is that clear? Let us come to the next one. Okay, so number 2 is barium chloride plus sodium sulfate gives barium sulfate plus sodium chloride. So let us write
their chemical formulas first. Number 1, barium chloride. I've already written BaCl2 plus sodium sulfate. So how we're going to write the formula of sodium sulfate? You have already learned this in your previous classes also. Let me show you how to write a formula. Sodium, you know very well, symbol of sodium is Na, and sulfate is SO4 minus 2. Now when you have minus 2 over here, you have to neglect this minus sign. Okay, so we write formulas or we make formulas by using crisscross method. Now what will happen, this 2 will come here, and here sodium has +1 charge. Okay, and this 1 will come here. This method is known as crisscross method. So we will neglect these symbols and the formula will be Na. This 2 has come here, तो यहाँ 2 आ जाएगा, and SO4 1 नीचे आ जाएगा. अगर हम इसको ऐसे करके 1 लिखेंगे तो वो रॉन्ग होता है. अगर 1 के अलावा 2, 3, 4 होता है तब हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं. अगर 1 है तो हम नहीं बनाते हैं ब्रैकेट. Is that clear? So this is the formula of sodium sulfate. Now let us write here Na2SO4 gives barium sulfate. Barium is, let me show you again how to write the formula. Barium has +2 charge and sulfate SO4 minus 2. Now you can see here +2 minus 2, so they get cancelled. So the formula of barium sulfate is BaSO4. So write down BaSO4 here plus sodium chloride. Sodium chloride is very easy. Sodium Na chloride Cl. Is that clear? Okay. Now let us proceed the balancing. First of all, we need to find out with which element we will going to begin balancing. तो सबसे ज़्यादा atoms कौन से element में present हैं? Barium 1 है, chlorine 2 है, sodium 2, sulfur 1, oxygen 4. So let us begin with oxygen first of all. Is that clear? Okay. Now on the left hand side oxygen has 4 atoms. Right hand side में भी oxygen के पास 4 atoms है. तो oxygen अब यहाँ balanced है. Okay. Let us come to sodium. Sodium has 2 atoms in the left hand side and it has only 1 atom in the right hand side. So what we will going to do? We will going to write 2 here. अब यहाँ पर कितने एटम्स हो गए टोटल सोडियम के? 2 हो गए. और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 2 है वो दो एलिमेंट्स के लिए होगा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ सोडियम के लिए जब हमने 2 ऐड किया है तो वो क्लोरीन का भी जो नंबर है वो अब कितना हो गया है? 2 एटम्स हो गया है. ओके, ऑल राइट. सो एक बार फिर से चेक करते हैं. सोडियम 2 एटम्स, सोडियम 2 एटम्स. लेट अस कम टू क्लोरीन. क्लोरीन के पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी इट हैज़ गॉट 2 एटम्स and on the right hand side chlorine has got 2 atoms, so chlorine is balanced. Okay, now which element is left? Barium 1 atom left hand side, barium 1 atom right hand side. One more element is left, sulfur, only 1 atom, sulfur only 1 atom. So I hope the equation is balanced. Let us write down a balanced equation clearly. BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus twice NaCl. Let us check. Barium 1, chlorine 2, sodium 2, sulfur 1, oxygen 4. So left hand side is equal to right hand side. Is that clear? Number 3 is lead nitrate. On heating gives lead oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. Okay, so let us write their formulas. Lead nitrate
lead, you know its symbol is Pb. Nitrate is NO3 -1 and lead has +2 charge. Okay, now what happens here? We have to neglect these symbols. So this 2 will come here and this one will come here. So the formula will be Pb, 1 हम नहीं लिखते हैं, NO3 whole twice. Is that clear? लेड नाइट्रेट, ये जो 2 है वो नाइट्रेट के पास आ जाएगा, 1 लेड के पास आ जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं. सो द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3 whole twice. So let us write the reaction now. PbNO3 whole twice. एक बार इसको समझ लीजिए दैट लेड इज ओनली 1, Pb एक ही है, nitrogen, oxygen, 2 elements are present in the bracket. This 3 is the subscript of oxygen. That means oxygen के पास 3 atoms हैं, nitrogen के पास कोई subscript नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है. ओके, अब ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है और ये जो 2 है वो अंदर के नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई. आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, तो सेम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास 2 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 3 2 6, और लेड के पास 1 ही है क्योंकि ये ब्रैकेट किसके पास है, NO3 के बाहर है. लेड के पास 1 एटम ही है. ओके ओके. सो लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग, हीटिंग का सिंबल क्या होता है, ट्राइंगल, गिव्स लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला NO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन O2. O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर? Okay, so the fourth equation is MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. Okay, so let us start this equation. Now I am going to write this equation again clearly. MnO2, Mn is manganese, O is oxygen, plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. Now let us start with the element. Which element? Oxygen has 2, chlorine has 2. So let's start with oxygen. Okay, so on the left hand side oxygen has 2 atoms, on the right hand side oxygen has only 1 atom, so we will write 2 here. Now oxygen कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए. ओके, लेट अस कम टू क्लोरीन. क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 है, राइट हैंड साइड में 2 प्लस 2 कितने हो गए, क्लोरीन 4 है, तो हमें यहाँ पर 4 ऐड करने पड़ेंगे, तो वी विल राइट 4. ठीक है, अब क्लोरीन कितने हो गए, 4, और यहाँ पर कितने थे क्लोरीन, 4, तो ये बैलेंस हो गया है. लेट अस कम टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 2 4, तो यानी कि हाइड्रोजन भी 4 हैं, तो बैलेंस्ड हैं. लेट अस कम टू मैंगनीज. मैंगनीज इज़ 1, यहाँ पर भी मैंगनीज 1 है. तो आई होप ये इक्वेशन जो है बहुत जल्दी ही बैलेंस हो गई. एक बार फिर से चेक करते हैं. मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये देखिए 2 ही है. लेट अस कम टू हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 4, क्लोरीन 4, और यहाँ पर 2 एंड 2 4, क्लोरीन भी 4 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है. लेट अस राइट क्लियर इक्वेशन अगेन. बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O plus Cl2. Is that clear? Fifth equation is
zinc Zn plus AgNO3, AgNO3 silver nitrate gives ZnNO3 whole twice. That means zinc nitrate plus Ag is silver. Okay, so let us start balancing with which element you tell me? Oxygen, because oxygen has more number of atoms. So on the left hand side you can see that oxygen has only 3 atoms, and on the right hand side 3 2s are 6. Oxygen has 6 atoms. So we will going to 3 2s are 6 हो जाएगा. तो what we will going to do? We will going to add 2 here. तो अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना हो गया 6 और राइट हैंड साइड में भी 6. तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. लेट अस कम टू नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पास में ही इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो नाइट्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, एंड ब्रैकेट के बाहर भी क्या है 2 है. दिस 2 इज फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो. सो नाइट्रोजन भी यहाँ राइट हैंड साइड में कितना है 2. तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है. Okay, let us come to silver. There are 2 silver atoms on the left hand side and यहाँ only 1 atom is there. right hand side में सिर्फ एक ही atom है, so we will write 2 here. अब silver balance हो गया. Let us come to Zn. Zn only 1 atom on the left hand side and 1 atom on the right hand side. Is that clear? So I hope the equation is balanced. Let us check again. Zn1, Zn1. Twice Ag, twice Ag, nitrogen 2, nitrogen 2, oxygen 3 2s are 6, oxygen 3 2s are 6. So this equation is balanced. Let us write down a clear balanced equation here. Zn plus 2 AgNO3 gives Zn NO3 whole twice plus 2 Ag. So this is your balanced equation. Let us come to the next equation. Number 6 is KBr. This is potassium bromide plus BaI2. Ba is barium, I is iodine, barium iodide plus Ki is potassium iodide plus BaBr2 is barium bromide. Is that clear? So let us start balancing with which element? You can either start with iodine or barium. So let's start with iodine. Iodine on the left hand side has only 2 atoms and on the right hand side it has only 1 atom. So we will write 2 here. So iodine अब कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए, बैलेंस हो गए. ओके, लेट अस कम टू पोटेशियम, क्योंकि जब हमने यहाँ 2 ऐड किया तो पोटेशियम का नंबर भी इंक्रीज हुआ है. तो पोटेशियम अब यहाँ पर 2 है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 इज देयर. सो वी विल राइट 2. सो पोटेशियम 2 लेफ्ट हैंड साइड, पोटेशियम 2 राइट हैंड साइड, बैलेंस हो गया. अब आते हैं ब्रोमीन पर. ब्रोमीन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं 2 हैं, तो बैलेंस्ड है. बेरियम ओनली 1 on the left hand side, barium again 1 on the right hand side. So this equation is also balanced. Let us check. 2 potassium, 2 barium, 2 bromine, 1 barium, 2 iodine, 2 iodine. So this equation is balanced. Let us write down clearly. 2 KBr plus BaI2 gives 2 Ki plus BaBr2. So this is the balanced equation. Equation number 7 is aluminium plus copper chloride plus aluminium chloride plus copper. Now this is a word equation. We will going to write a symbolic equation first of all. So for aluminium, symbol of aluminium is Al, capital A, small l. I hope you know how to write symbols. Plus copper chloride. What is the symbol of copper? Cu. Chloride is Cl. Now here copper, you know very well, it has 2 valencies, +1 and +2. In this case, +2 valency of copper is used.
Okay, so +2, and Cl, you know, it has -1, so this 2 will come here, this 1 will come here, so your formula will be CuCl2. यहाँ पर 1 आ जाएगा तो Cu के पास कोई नंबर नहीं है, ये जो 2 है Cl के पास आ जाएगा, तो क्या बन गया फॉर्मूला? कॉपर क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड. ओके, +1 के लिए हम बोलते हैं क्यूप्रस, +2 के लिए बोलते हैं क्यूप्रिक. ओके, सो लेट अस राइट. CuCl2 gives aluminium chloride. Let us write again. एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Al, और क्लोराइड का होता है Cl. एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, क्लोरीन का -1, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो इस आपका फॉर्मूला है AlCl3. सो लेट अस राइट AlCl3 प्लस नेक्स्ट क्या है? कॉपर, Cu. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस बिगिन बैलेंसिंग विद विच एलिमेंट? क्लोरीन. क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 3 है, तो यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा. अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी तो कितना हो जाएगा? 2 2 सा 4, और यहाँ पर कितना है? 3 है. ओके, और अगर 2 और 3 को हमें बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6. इसका मतलब मुझे क्या नंबर ऐड करना है यहाँ पर? 3. अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 2 सा 6, तो क्लोरीन कितने हो गए? 6. ओके, और यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो 3 2 सा 6, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए? 6. इज दैट क्लियर? तो क्लोरीन इज बैलेंस्ड. नाउ लेट अस कम टू कॉपर. कॉपर कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं. यहाँ ओनली सिंगल एटम, तो वी विल राइट 3 है. कॉपर बैलेंस हो गया है. अब आते हैं हम एल्यूमिनियम पर. एल्यूमिनियम यहाँ ओनली 1 एटम इज देयर, और हेयर 2 एटम्स आर हेयर, सो वी विल राइट 2. ओके, फटाफट बैलेंस हो गई ये रिएक्शन. एक बार फिर से चेक करते हैं. 2 एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड, 2 एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड, 3 कॉपर लेफ्ट हैंड साइड, 3 कॉपर राइट हैंड साइड, 3 2 ज़ा 6 chlorine left hand side, 3 2 ज़ा 6 chlorine right hand side. So your balanced equation is 2Al plus 3CuCl2 gives 2AlCl3 plus 3Cu. Is that clear? So this is your balanced chemical equation. Next is, this is the last equation that we're going to practice today. Barium chloride plus aluminium sulfate gives aluminium chloride plus barium sulfate. ओके, नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ऐसी वर्ड इक्वेशन आती हैं तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और अगर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो आपकी इक्वेशन कभी भी सही बैलेंस नहीं होगी. तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको क्या आना चाहिए? आपको जैसे ये बेरियम है, आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, इसकी वैलेंसी या चार्ज पता होना चाहिए, तभी आप आगे फॉर्मूला बनाने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला बनाने के लिए सिंबल चाहिए और उनका चार्ज चाहिए. इज़ दैट क्लियर? सो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, सो प्लीज़ इसको ध्यान से रिवाइज़ कर लें फिर से. ठीक है, चैप्टर 1 में नहीं पढ़ा है, सॉरी, ये आपको याद करना है, ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट इक्वेशन. बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल होता है Ba एंड क्लोराइड इज Cl, और बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. अब एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al, चार्ज होता है +3, और सल्फेट होता है SO4-2. चार्जेस हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, तो ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Al, 2 आएगा ना यहाँ पे, 2, फिर SO4, और ब्रैकेट के बाहर ये क्या आ जाएगा? 3. सो फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2 SO4 whole thrice gives aluminium chloride, aluminium
क्लोराइड AlCl3। 3 यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 चार्ज होता है तो वो यहाँ आ जाएगा। क्लोरीन का 1 होता है तो वहाँ 1 यहाँ आएगा तो 1 हम नहीं लिखते हैं। प्लस बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। Is that clear? So let us balance. So we will going to begin with oxygen क्योंकि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम्स हैं। On the left hand side oxygen 4 3s are 12, ऑक्सीजन के पास 12 एटम्स हैं। राइट हैंड साइड में ओनली 4 एटम्स आर देयर। सो 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि 3 4 सा क्या होता है 12। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने हो गए 12। अंडरस्टूड। लेट अस कम टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 1 ही हैं तो इसको 2 कर देती हूँ मैं। तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गए दोनों तरफ। ओके, लेट अस कम टू क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने हैं 3 2 ज़ा 6। क्लोरीन कितने हैं 6 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 आर देयर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 3 क्योंकि 3 2 ज़ा क्या होता है 6। तो क्लोरीन कितने हो गए 6। तो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 और राइट हैंड साइड में भी 6। अब क्या बचा है सल्फ़र। सल्फ़र कितना है ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ये 3 दोनों के लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी और सल्फ़र के लिए भी है। तो यहाँ सल्फ़र लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में ये जो 3 है वो बेरियम के लिए भी है, सल्फ़र के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर भी 3। तो सल्फ़र क्या है बैलेंस्ड है, यहाँ पर भी 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है, बेरियम 3 है, इधर भी 3 है। तो आई होप द रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। लेट अस चेक अगेन 3 बेरियम 3 बेरियम, क्लोरीन 3 2 ज़ा 6, क्लोरीन 3 2 ज़ा 6 बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2, सल्फ़र 3 सल्फ़र 3, ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12, ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12। So the reaction is balanced. Let us write down 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives twice AlCl3 plus 3BaSO4। इज़ दैट क्लियर? और बेरियम सल्फेट आपको पहले बताया है मैंने वीडियोस में कि दिस इज़ अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट एंड प्रेसिपिटेट को हम कैसे शो करते हैं बाय डाउनवर्ड एरो। इज़ दैट क्लियर? सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन. So I hope you have understood. Please practice more balancing of equations at home. Okay, students, I hope you have understood the balancing of chemical equations now. I'm sure this will going to benefit you. So all the best. Stay home and stay healthy.